Hello and welcome back everyone. Chapter Matrices. It is a rectangular arrangement of numbers written in rows and columns. The horizontal lines are called rows of the matrix and the vertical lines are called column of the matrix. Now algebra of matrices. First, transpose of a matrix. By interchanging rows and column, we can get transpose of a matrix. If A is this matrix, then its transpose denoted by AT is equals to, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या है 2 -1 6, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो 2 -1 6, और ये है सेकेंड कॉलम 3 5 7, और ये अब बन गया सेकेंड रो, मतलब कॉलम को रो में चेंज कर दिया, तो मिला ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. इसका ऑर्डर है यहाँ पे 1 2 3 रोज है तो, और कॉलम है 2, तो 3/2 ऑर्डर, और इसका ऑर्डर होगा 1 2 रोज तो 2, और कॉलम है यहाँ पे 1 2 and 3, सो इट इज ऑफ ऑर्डर 2/3. नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एलिमेंट Aij in the matrix is equals to Aj for every I and j. Means here we will have A1 2 matrix is equals to A21. ये कौन सा मैट्रिक एलिमेंट है A1 2, और ये है A21, दोनों इक्वल है HH. एंड अगेन A1 3 एलिमेंट इज इक्वल्स टू A31. ये एलिमेंट है A13 और ये एलिमेंट है A31. ये दोनों एलिमेंट इक्वल होगा. सिमिलरली ये दोनों एलिमेंट इक्वल होगा. ओके और ये डायगोनल एलिमेंट कोई भी एलिमेंट होगा, इट्स ओके, बट दिस एलिमेंट Aij should be equals to Aj. Then we say the matrix is symmetric matrix. Let me write one more example. Suppose ये एलिमेंट है, तो यहाँ पे अगर 0 है तो ये भी एलिमेंट 0 होगा. यहाँ पे अगर 5 है तो ये एलिमेंट भी 5 होगा. सपोज ये -7 है तो ये जो एलिमेंट है ये होगा -7 इन दिस वे. सो दीज आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3. एंड इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स द मैट्रिक्स आर ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स. Next is skew symmetric matrix. Here Aij is equals to -Aj, and one more thing, Aii is equals to 0. यहाँ पे Aij is equals to -Aj, तो यहाँ पे 4 होगा तो ये एलिमेंट होगा -4. ये एलिमेंट अगर -7 है तो इसका इमेज जो है वो होगा 7. ये 5 है तो ये होगा -5, मतलब साइन ऑपोजिट रहेगा. एंड Aii इज इक्वल्स टू 0. Aii मीन्स A11 इक्वल्स टू 0, A22 इक्वल्स टू 0, A33 विल बी इक्वल्स टू 0. सी A11, A22, A33 all are 0. And one important thing to be noted is transpose of a transpose matrix is again the same matrix. जैसे कि ये AT है, इसका फिर से जब हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, मीन्स रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये फिर से A मैट्रिक्स हो जाएगा. इसको AT, इसका मैं ट्रांसपोज निकाल रही हूँ. अभी मेरा ये है फर्स्ट रो, तो ये बन जाएगा अभी फर्स्ट कॉलम 2 -1 6, और ये है सेकेंड रो, तो ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम, मतलब जो रो है वो कॉलम बन जाएगा. ओके तो हमें फिर से मिल गया मैट्रिक्स A. दिस इज मैट्रिक्स A अगेन. So this is important. Equality of matrices. Two matrices are said to be equal if order of the matrices are equal and elements of the matrices are equal. Suppose A and B are these two matrices
and if A is equals to B, then X is equals to 5. Then X is equals to 5, Y is equals to 6, A is equals to 7 and B is equals to 8. Means order of the matrix should be equal and corresponding elements of the two matrices will be equal. Next, addition of two matrices or subtraction of two matrices. Let A and B are two matrices, then we can get A plus B by adding corresponding elements of A and B. तो A plus B आएगा, ये 2 plus 0, 5 plus 1, 3 plus 3, 6 plus 4. बहुत सिंपल है. फिर नॉर्मल ऐड करके जो आंसर आएगा वो 2, 6, 6, 10. सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन A माइनस B, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. 2 माइनस 0, 3 माइनस 3, 5 माइनस 1, 6 माइनस 4. फिर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा A माइनस B. 2, 0, 4, 2. दिस इज A माइनस B मैट्रिक्स. नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मीन्स कांस्टेंट, मतलब कोई भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, देन वी विल मल्टीप्लाई each element of the matrix by the same constant. Suppose A is this matrix and we have to find 5A, then we will multiply each of this element by 5. तो ये हो जाएगा 5 into 2 10, 5 into 1 is 5, 5 into minus 2 is minus 10 and it is 15. Now let's do exercise. Exercise 2.2. Question number 2. If A and B are two matrices, then find matrix A minus 2B plus 6I, where I is unit matrix of order 2. I is unit matrix of order 2. ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है, इसका डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं. यूनिट मैट्रिक्स इज 1 0 0 1 ऑफ ऑर्डर 2. तो हमें ये 2/2 यूनिट मैट्रिक्स समझना है. तो अभी स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है. A माइनस 2B प्लस 6I. तो A का वैल्यू A मैट्रिक्स लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस 2 इंटू B मैट्रिक्स 1 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 5 माइनस 2 3 2. ऑल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू माइनस 7 इज माइनस 14. Then 6 into each element, 6 0 0 6. Now normal addition and subtraction we can do all together. So 1 minus 2, क्योंकि ये मैट्रिक्स के पहले माइनस साइन है तो लिखेंगे माइनस 2 और फिर प्लस 6, क्योंकि इस मैट्रिक्स से पहले प्लस साइन है. ये हो गया, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया. और सेकेंड एलिमेंट के लिए थोड़ा स्पेस रख के ये माइनस 2, फिर माइनस ऑफ माइनस 6, फिर प्लस 0 इन दिस वे. नॉर्मल जैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही. 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 प्लस 0. नेक्स्ट होगा 3 माइनस ऑफ माइनस 14 प्लस 6. 1 प्लस 6 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 8 इज 3. ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 6, तो हो जाएगा 4. माइनस 2 प्लस 6 4, और ये हो जाएगा 3
plus 14 plus 6, 23. If A and B are two matrices, then find the matrix C such that A plus B plus C is a zero matrix. तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स मीन्स नल मैट्रिक्स, और ऑर्डर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हमें ये समझ जाना है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स ए एंड बी गिवन है 3x3 मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स को भी हमें 3x3 ऑर्डर का लेना है. जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय जीरो ऑफ ऑर्डर 3x3, तो ये होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0. And question is, in question it is given A plus B plus C is zero matrix. तो जीरो मैट्रिक्स को मैंने जीरो से डिनोट किया, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है C. तो C को लिखना है लेफ्ट में और बाकी सब आ जाएगा राइट में. जो भी हमें फाइंड करना होगा मैट्रिक्स वो लेफ्ट में रहेगा, बाकी सब राइट में आ जाएगा. तो ज़ीरो माइनस साइन कॉमन A प्लस B, तो हम A प्लस बी मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे. मैट्रिक्स A 1 2 -3 -3 7 -8 0 -6 1, ये मैट्रिक्स A है, और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि हम A प्लस बी दोनों फाइंड करेंगे यहाँ पे टोटल करके, फिर जीरो मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे. एंड B मैट्रिक्स इज 9 -1 2 -4 2 5 4 0 -3. ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसको हम लिख देते हैं 0 0 0 0 0 0, और एक और आएगा 0 0 0. जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 बिकॉज ये दोनों 3x3 है. द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम, देन ओनली वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. अब इन दोनों का आंसर यहाँ पे लिख देते हैं. 1 + 9 तो हो जाएगा 10, 2 + -1 तो हो जाएगा 1, फिर -3 + 2 इज -1, फिर -3 -4 इज -7, 7 + 2 9, ऐड करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो -8 + 5 इज -3, 0 + 4 इज 4, -6 + 0 इज -6, 1 + -3, 1 + -3 is 1 - 3 which is equals to -2. Now 0 minus this element, तो इन शॉर्ट ये सब जो मैट्रिक्स है इनका साइन चेंज हो जाएगा. 0 - 10 तो हो जाएगा -10, 0 - 1 -1, फिर 0 - of -1, 0 - of -1 तो ये हो जाएगा 0 + 1 विच इज़ 1. तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये नंबर्स का साइन चेंज हो गया है ना. तो -7 हो जाएगा 7, 9 बन जाएगा -9, -3 बन जाएगा +3, और ये सब भी सिमिलरली चेंज करके लिखना है 6, और ये हो जाएगा 2. सो दिस इज मैट्रिक्स C. Question number 8. Find x, y, z if this is a skew symmetric matrix. तो skew symmetric matrix का definition हमें याद करना होगा. First, let A is the given matrix. Given A is a skew symmetric matrix, therefore
aij is equals to minus aji. That means a12 is equals to minus a21 element, and a13 is equals to minus a31 element. And next is this is second row and third column. तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ? a23. a23 is equals to minus a32 element. So substituting the values, a12 element कौन सा है? minus 5y, और a21 element है y. Therefore y is equals to 5i. तो y का वैल्यू मिल गया. नेक्स्ट a13 एलिमेंट है x, और माइनस a31 एलिमेंट है 3/2. तो x का वैल्यू मिल गया माइनस 3/2. देन a23 है z इज इक्वल्स टू माइनस a32 एलिमेंट. ये है a32 एलिमेंट बिकॉज ये थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम में है. तो इसका वैल्यू -√2 एज इट इज हम लिखेंगे. ठीक है, a32 का वैल्यू ब्रैकेट में लिखा और ये माइनस साइन मैंने बाहर लिखा. देयरफॉर z इज इक्वल्स टू √2. So we have got x, y and z. Next, question number 12. Find matrices A and B if 2A minus B is this matrix and A minus 2B is this matrix. Question number 12. 2A minus b, let 2a minus b is equals to x and a minus 2b is equals to y. इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2. अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे टू गेट a एंड b फर्स्ट. तो यहाँ पे 2a है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a. तो मल्टीप्लाइंग, जैसे नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, सेम उसी मेथड से करना है. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 वी गेट, क्या मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई करके थ्रू आउट, 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 2y. लेट इट बी इक्वेशन 3. अब हम माइनस करेंगे 1 माइनस 3. इक्वेशन 1 माइनस 3. तो इक्वेशन 1 को लिख देते हैं 2a माइनस b इज इक्वल्स टू x, और ये इक्वेशन 3 को लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 2y. सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएगा. 2a और ये है माइनस 2a कैंसिल, माइनस b प्लस 4b इज 3b, और ये हो जाएगा x माइनस 2y. Therefore b is equals to 1/3 of x minus 2y. तो अब हमारे पास x एंड y जो मैट्रिक्स है मीन्स 2a माइनस b मैट्रिक्स गिवन है, और y मीन्स a माइनस 2b मैट्रिक्स वो क्वेश्चन में गिवन है. तो उन दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Therefore b is equals to 1/3 of x. x का वैल्यू, x मीन्स 2a माइनस b, तो इसका वैल्यू 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1 ब्रैकेट के अंदर लिखना है क्लोज, -2 इंटू y. y मीन्स
A माइनस 2B मैट्रिक्स। तो A माइनस 2B मैट्रिक्स ये है, इसका वैल्यू 3 2 8 3 2 8 -2 1 -7। 6 -6 0 -4 2 1, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को सिर्फ अंदर ले रही हूँ, माइनस साइन बाहर ही रखा है मैंने। तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा 6 4 16 -4 2 एंड -14 ब्रैकेट क्लोज। 1/3 ऑफ, अब नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो 6 - 6 इज 0, -6 -4 इज -10, 0 -16 इज -16, फिर -4 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो -4 + 4 हो जाएगा 0, फिर 2 - 2 2 - 2 0, 1 माइनस ऑफ -14, मतलब 1 माइनस ऑफ -14, तो 1 + 14 विच इज इक्वल्स टू 15। आप रफ वर्क में करके भी आंसर लिख सकते हैं अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो तो। वन बाई 3 इंटू 0 is 0, 1/3 into -10 is -10/3, 1/3 into -16 is -16/3, 1/3 into 0 is 0, 1/3 into 0 is again 0, 1/3 into 15 is 5। So हमें मिल गया B मैट्रिक्स। Now from 1 2a minus b is equals to x, 2a minus b is equals to x। अब हमें b मिल गया, फाइंड करना है a, तो a को लेफ्ट में रखना है और b को राइट में शिफ्ट कर देना है, x प्लस b। तो a हो जाएगा 1/2 x प्लस b। अब x क्या है, गिवन मैट्रिक्स 2a माइनस b, जो क्वेश्चन में गिवन है 2a माइनस b, वो है x मैट्रिक्स। तो उसका वैल्यू हम लिख देते हैं 6 - 6 0 -4 2 1। फिर b मैट्रिक्स जो हमें यहाँ पे मिला है वो 0 0 -10/3 0 -16/3/5। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। (6 + 0 is 6 -6), यहाँ पे रफ वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, -6 प्लस -10/3, ये दोनों को ऐड करना है। तो -6 - 10/3 टेकिंग 3 LCM, -18 - 10, 3 6 18, तो -28/3, -28/3। फिर नेक्स्ट है 0 प्लस -16/3, तो 0 के साथ कुछ भी ऐड करेंगे तो सेम नंबर रहेगा, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली -16/3। फिर -4 + 0 इज -4, 2 + 0 इज 2, 1 + 5 इज 6। अब इस 1/2 को सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 × 6 इज 3,
और ये 1/2 इंटू -28/3, तो दोनों कट होके आंसर -14/3। सिमिलरली हाफ इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 16 कैंसिल होके -8/3 और हाफ इंटू -4, तो 2 and 4 कट होके हो जाएगा -2। हाफ इंटू 1/2 इंटू -4, तो कट होके -2 आंसर। फिर हाफ इंटू 2 इज 1, फिर हाफ इंटू 6 इज 3। Therefore, this is required matrix A. Question number 14. 2a plus b, 3a minus b, c plus 2d, 2c minus d is equals to 2, 3, 4 minus 1. Find a, b, c and d. ये दोनों equal matrix है, और if two matrices are equal, then their corresponding elements are also equal. Therefore, 2a plus b is equals to 2 and 3a minus b is equals to 3. Name this as equation 1 and 2. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें a and b मिल जाएगा। और सेकेंड थिंग, c plus 2d is equals to 4. Name as equation 3 and 2c minus d is -1, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो सी डी मिल जाएगा। दो प्लस बी माइनस बी ऑपोजिट साइन है, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 2a प्लस 3a हो जाएगा 5a, ये दोनों तो कट हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 + 3 5 implies a is equals to 5/5 which is 1. Substituting a is equals to 1 in equation 1, 2 into 1, a का वैल्यू 1 लिखा, प्लस b, 2 plus b is equals to 2, b is 2 minus 2 0, b भी मिल गया। Now here multiply equation 4/2, equation 4 into 2 gives 4c minus 2d is equals to -2, इसको लिख देते हैं 5। अब यहाँ पे प्लस 2d और इसमें है -2d, तो दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 3 + 5 या फिर एडिंग 3, 5, तो c plus 2d is equals to 4, 4c minus 2d is equals to -2, दोनों को ऐड करना है, तो c plus 4c हो गया 5c, और ये हो गया 2, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो c is equals to 2/5. Putting c is equals to 2/5 in equation 3, c का वैल्यू 2/5 plus 2d is equals to 4, तो 2d is equals to 4 minus 2/5, 2d is 4 into 5 20, 20 minus 2 18/5, therefore d is, ये 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 18, 2 into 5 कट करके 9, therefore d is equals to 9/5. So we have now values of a, b, c and d. ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।